Hi everyone, welcome back in the new video. Myself सचिन जैन and आपका एक बहुत अच्छा सा चैनल सचिन जैन सहारनपुर के नाम से है और today we will continue the chapter number 11 of class 12 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पिछली वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया था, आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स करना है। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले आपका आएगा रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें कई तरह से रिएक्शन होंगी। सबसे पहले हम OH बॉन्ड के क्लीवेज के केस को स्टडी करेंगे। नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन होनी है। सपोज मैंने अल्कोहल ले लिया कोई भी ROH, ट्वाइस Na मेटल से रिएक्शन करा रहा हूं मैं, देन 1H will replaced by the sodium atom and the compound formed is RONA, hydrogen gas will be released. This type of compound RONA type is known as sodium alkoxide. Now example will be taken, replace R by C2H5, जैसे आपको पहले भी बताया था। C2H5 से कर सकते हैं, CH3 से कर सकते हैं और किसी से भी कर सकते हैं। Then twice C2H5OH plus 2Na gives 2 C2H5ONA plus H2. This compound is known as the sodium ethoxide. These reactions show that the alcohols are acidic in nature. अल्कोहल का एसिडिक नेचर हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्लियर हो जाए। और ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इट मींस हाइड्रोजन आयन बने हैं। जब हाइड्रोजन आयन बनेंगे तभी H2 गैस बनेगी। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन शो दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। Number 2, reaction with the carboxylic acid and the reaction is known as the esterification. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। Now in this reaction carboxylic acid RCOOH reacts with the alcohol R-OH suppose in presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 as you all know behaves as dehydrating agent, means इसमें water को वो absorb करते हैं and the corresponding compound ester is formed. In this case, 1H from the alcohol, 1OH from the carboxylic acid combine together to form H2O and the corresponding compound ester are formed. You know that esters are the compound having the fruity smell. Example लेंगे हम इसका। Suppose R को हमने replace कर दिया by CH3 group and R' is replaced by C2H5 group. Therefore, acetic acid and ethanol is taken in presence of concentrated H2SO4. 1H and 1OH combine together to form H2O and the corresponding compound ester is formed, CH3COO C2H5. This compound is known as the ethyl acetate because इतना ग्रुप आपका ethyl acetate है और ये आपका ethyl है, therefore it is the ethyl acetate. It is the common name. IUPAC name आप बना सकते हैं, that will be ethyl ethanoid. 2 कार्बन का कंपाउंड है ethanoid. Next is the reaction with acetyl chloride or acetic anhydride. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में बेसिकली एक एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एसिटाइल क्लोराइड ले रहा हूँ, एसाइल क्लोराइड CH3 RCOCl plus R-OH in presence of pyridine, then the 1H and 1Cl HCl will be released and the corresponding compound RCOOR' means ester, you can say that there is forming. RCO group or CH3CO group is known as the acyl group. Therefore, attachment of acyl is there. That's why this process is known as acylation. In this case, you can also say that ester are formed. But remember that this reaction is not called acylation, esterification. This is called acylation. Example: suppose R is replaced by CH3, R' is replaced by C2H5, CH3COCl plus C2H5OH, 1H, 1Cl, HCl will form, and the corresponding compound CH3COO C2H5 is formed. Similarly, if reaction is carried out by acetic anhydride or acid anhydride, then RCO whole twice O, R-OH, 1H and 1 RCOO group combine together to form carboxylic acid and RCOR' is formed. Again ester is formed. Example: CH3CO combine together with the C2H5OH, then 1H of alcohol and 1 CH3COO group combine together to form carboxylic acid and 1 ester group is formed. Ester compound is formed. In the above reaction, pyridine is taken. What is the function of pyridine? Basically, pyridine behaves as a base. This reaction is the reversible reaction. In this reaction, HCl is formed, which is an acid. Therefore, pyridine base is used, which combine with the HCl, or you can say that absorb HCl, so that the reaction can take place only in the forward direction, not in the backward direction. Next is the reaction due to the cleavage of carbon-oxygen bond. रिएक्शन जो है अब की बार हम बोलेंगे, अभी तक तो हम OH बॉन्ड की ब्रेकिंग वाले ले रहे थे, अब हमें बोलेंगे है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। Order of reactivity of alcohols towards this type of reaction is 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree.
You can say that tertiary alcohols are more reactive, secondary less reactive, and primary least reactive. Reason behind that, the number of alkyl groups. Number of alkyl groups are more in the tertiary alcohols. You know that alkyl groups always shows plus I effect. Always remember that alkyl group shows plus I effect and increases the polarity of CO bond. कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की पोलैरिटी को इंक्रीज करता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स में। तो उसमें आपका as the number of alkyl group increases, plus I effect also increases. That's why polarity of carbon oxygen bond also increases. जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना जल्दी ब्रेक होगा और उतनी ज्यादा ही रिएक्टिविटी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन विद द हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स में कैसा होना है, C2H5OH की HCl सेक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 कराते हैं एंड वी हैव टू हीट इन दिस रिएक्शन. In this case, 1H, 1OH combined together to form H2O, and the compound formed is C2H5Cl. Similarly, this was the primary alcohol. Now we are taking the secondary alcohol. Again, 1H, 1OH combined together to form H2O, and the chloro compound is formed. You can say that it is the isopropyl alcohol. Similarly, in case of tertiary alcohol, 1H and 1OH combined together to form H2O, and the chloro compound is formed. Remember that in all the three reactions, chloro compounds are formed, which are basically white color compound and insoluble in water, forms turbidity. You can say that milkiness. आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है सॉल्यूशन की वो कम हो जाएगी. Therefore, this reaction can be used as a test for the distinction between primary, secondary, and tertiary alcohols, and this test is known as the Lucas test. टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है, इसलिए रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं, कोई हीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं है. सेकेंडरी अल्कोहल्स में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स आती है और प्राइमरी में ओनली अपॉन हीटिंग आती है. यू कैन से दैट इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली देन द अल्कोहल इज 3 डिग्री. इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट देन द अल्कोहल इज 2 डिग्री. इफ द टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग then it is called as the primary alcohol, and this test is known as the Lucas test. सबसे बढ़िया टेस्ट है Lucas test, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का. बाकी भी और टेस्ट है उतने बढ़िया नहीं है जितना इजी और सिंपल टेस्ट ये है. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड्स. ये सारी रिएक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है, ये भी थी इवन ये भी है. वहां पर एज ए केमिकल प्रिपरेशंस में थी, यहाँ पर एज ए केमिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं. हेलोल्केन्स पढ़ोगे तो अल्कोहल में हेल्प मिल जाएगी, अल्कोहल पढ़ोगे तो हेलोल्केन्स में हेल्प मिलेगी. इसलिए साथ साथ इन चैप्टर को लर्न करते रहो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी. रिएक्शन को याद करने का सबसे सिंपल मेथड होता है, रिएक्शन को आप बार बार लिख के देखें. जितना आप लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना आप रिएक्शन अच्छे से कवर कर जाएंगे. नाउ रिएक्शन विद द फॉस्फोरस हैलाइड. फॉस्फोरस के हैलाइड आप जानते ही हो, PCl5, PCl3, PbR3, Pi3 ये सब होते हैं. नाउ द रिएक्शन C2H5OH plus PCl5, then 1H, 1Cl, HCl will form, C2H5 and Cl, C2H5Cl is formed, and POCl3 is the remaining compound. Similarly, if the reaction is carried out with PCl3 or PbR3 or Pi3, then we have to use 3 moles of the alcohol. देखो मैंने तीनों में 3 moles ले रखे हैं. Then 3 C2H5 and 3 Cl gives 3 C2H5Cl plus OH3 बचे आपके पास, P1 बचा हुआ है. Then the compound formed is H3PO3. तीनों रिएक्शन में देखो ध्यान से सेम है. यहाँ पर क्लोरो कंपाउंड है, यहाँ पर ब्रोमो और यहाँ पर हाइड्रोजन. तीनों रिएक्शन सिंपल है. अब एक चीज छोटी सी समझने की है, PbR3 and Pi3 both are the unstable compound. Therefore they have to prepare at the time of the reaction. आपको रिएक्शन के टाइम पे बनाने हैं, बनाने के बाद उनको यूज करना है with the help of reaction of red phosphorus and Br2, and in this case red phosphorus and I2. इनकी रिएक्शन से बनाएंगे. लास्ट इज द रिएक्शन विद द थायोनाइल क्लोराइड SOCl2. इस केस में SOCl2 से जब आप रिएक्शन करेंगे then 1H, 1Cl, HCl will form SO, and this oxygen atom give SO2, and the compound formed is मेन कंपाउंड इज C2H5Cl. ये C2H5 और ये Cl मिला के बन गया आपका क्लोरो कंपाउंड. इन दिस रिएक्शन वन बेनिफिट इज देयर, साइड प्रोडक्ट्स HCl and SO2 आर द गैसेस प्रोडक्ट एंड दे रिमूव इटसेल्फ. देन द क्लोरो कंपाउंड आर फॉर्म इन द वेरी प्योर स्टेट, और आपको किसी तरह के सेपरेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. Now the third type of the reactions involving cleavage of the alkyl group as well as the OH group. अब ऐसी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे जिसमें alkyl ग्रुप का भी रोल होगा कुछ और OH ग्रुप का भी.
फर्स्ट है इसमें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नोट कीजिएगा, 3 डिग्री, 2 ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री ही होगा। इसमें एक्चुअली क्या है डिहाइड्रेशन के लिए, यहाँ पर देखना पड़ता है बीटा एच कितने हैं, मोर द नंबर ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एटम्स मोर विल बी इजीली द डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल 1 OH ग्रुप। अच्छा, ये अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं जिसपे फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच होता है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट कार्बन इज बीटा। अब ये वाला कार्बन बीटा है, बीटा से एक H जाएगा, यहाँ से एक OH जाएगा, H2O will form and the compound formed is alkene. This reaction takes place in the presence of the concentrated H2SO4 and the temperature should be 443 Kelvin. As you all know, concentrated H2SO4 behaves as a dehydrating agent, water को absorb करने का काम करता है, ठीक है। Similarly, अब हम सेकेंडरी अल्कोहल को ले रहे हैं। इन दिस केस सेकेंडरी अल्कोहल में आप देखिए यहाँ से 6 बीटा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट जो होता है बीटा होता है, एडजेसेंट बीटा उधर भी इधर भी, तो बीटा पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उनका रिमूवल उतना इजीली होगा। देयरफॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। In this case, no need to take concentrated H2SO4. You can take also H3PO4 और उसकी भी कंसंट्रेशन कम ले सकते हैं 85% तक, 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम। 1 OH group from this carbon atom and 1 H hydrogen from the beta carbon atom to form an alkene. ये बन गया आपका H2O and the corresponding main compound is alkene. Similarly, if we taking the tertiary alcohol, फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन हो गया अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, देयर आर द 3 बीटा कार्बन एटम्स, देयरफॉर द 3 into 3 9 हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर द बीटा हाइड्रोजन एटम, उनका रिमूवल इजी है। दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। OH group from the alpha carbon and 1 H from the beta carbon to form H2O and the corresponding compound alkene is formed. Similarly, ये था आपका डिहाइड्रेशन। अब हम लेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप कोई सा भी इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr27। इस केस में आपका बनता है एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जरा इसमें ध्यान दीजिए, 1 H from this carbon atom and 1 H from this oxygen and 1 oxygen, 1 H, second H and O, H2O will form। H2O लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। Then the compound formed is CH3CHO, CH3CHO। ये और भी इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, therefore CHO converts into COOH group easily। This is the primary alcohol। Now I am moving towards the secondary alcohol। secondary alcohol में यदि आप यूज करते हैं तो ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं in the presence of CrO3 to form the ketone। अब कीटोन बनने के बाद जरा ऑक्सीडेशन मुश्किल है। इफ वी आर टेकिंग द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड कंडीशंस देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज CH3COOH, CO2 एंड H2O। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन इसमें एक फर्क है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम्स थे, बट यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो चुके हैं। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 रह गए। ये एक डिफरेंस कह सकते हैं इसमें। सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग द टर्शियरी अल्कोहल देन वी हैव टू यूज कंसंट्रेट एंड हॉट HNO3। तो यहाँ से आपका एक OH जाता है अब की बार, और यहाँ से कहीं से एक H जाता है, बेसिकली H2O एक रिमूव हो जाता है यहाँ पर, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। इफ इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड देन द बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर अटैच होता है, 2 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इस पे, तो ये बन जाता है आपका कीटोन। बीच में बनता है CO2 और बनता है साइड में H2O। अब इसी कंपाउंड का इसमें कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा जैसे यहाँ किया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 और H2 बनता है। इन दिस केस कार्बन एटम काउंट करो, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और जबकि यहाँ पर 4 कार्बन का टर्शियरी अल्कोहल था। इस केस में भी आपके कार्बन का नंबर कम हो रहा है। क्लियर? नाउ द थर्ड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन। देखो जब भी डी वर्ड आता है, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन था तो हाइड्रोजन मतलब वाटर का रिमूवल था, डिहाइड्रोजनेशन है इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। अब हम इस रिएक्शन में करते हैं विद द कॉपर मेटल एट 575 केल्विन टेम्परेचर। नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल वी आर यूजिंग। इन दिस केस 1 H फ्रॉम OH कार्बन OH एटम एंड 1 H फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम। यहाँ से कार्बन रिमूव होगा, कार्बन से H और एक H होगा, तो H2 गैस बनेगा, CH3CHO बनेगा। In this case, hydrogen gas is removing. That's why I am saying this process is the dehydrogenation. Similarly, in the secondary alcohol, 1 H from this carbon, 1 H from the OH group.
hydrogen gas is removed, ketone is formed. Similarly, in case of the tertiary alcohol, no dehydrogenation takes place. In this case, dehydration takes place. वाटर का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल नहीं होता है. यहाँ से एक OH जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, ये बन गया आपका H2 और बन गया आपका एल्कीन. These are the chemical properties of the alcohols. ये हमारी फिनिश हो गई, अच्छे से इनको कीजिएगा. अब हमने एक छोटा सा टॉपिक इसमें और लिया, डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. यदि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. सबसे पहला मेथड था ल्यूकास मेथड, जो आप कर चुके हो. इसमें टर्बिडिटी आती है, मिक्सचर को हम HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2 सेट करते हैं. टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल, आफ्टर 5 मिनट आए तो सेकेंडरी, और बहुत देर बाद आए ओनली अपॉन हीटिंग आए तो प्राइमरी. नंबर 2 टेस्ट था ऑक्सीडेशन टेस्ट. इस टेस्ट को, रिएक्शन को भी एज ए टेस्ट लगा सकते हैं हम, क्योंकि ध्यान दो सब में कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बन रहे हैं, बट कार्बन का नंबर कम हो रहा है. प्राइमरी में सेम, सेकेंडरी में 1 कम, टर्शियरी में 2 कम. ये आप टेस्ट लगा सकते हो. नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट सारे अलग अलग बन रहे हैं तो ये रिएक्शन भी एज ए टेस्ट लगा सकते हैं. फर्स्ट में प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी के केस में आपके बनते हैं कीटोन, और टर्शियरी के केस में बनते हैं एल्कीन्स. तो आप इनको एज ए टेस्ट लगा सकते हो. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आप हमारा आता है आइडोफॉर्म टेस्ट. इस टेस्ट में क्या करते हैं, पहली बात तो ये सारे टेस्ट में सारे अल्कोहल्स नहीं देते. ये वो अल्कोहल देंगे जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता है. आप कह सकते हो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, तो बीटा पोजीशन पे एक मिथाइल होना चाहिए और अल्कोहल होना चाहिए अल्फा कार्बन पे, तो CH3CHOH. ठीक, इसको क्या करना होता है, आयोडीन और NaOH के साथ में हीट करना होता है, आइडोफॉर्म कंपाउंड बनता है. और आइडोफॉर्म जब बनेगा तो उसका येलो पिपिटी आता है, साइड में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है. NaI बनेगा, H2O बनेगा. दीज आर द सेकंड साइड प्रोडक्ट्स. आपको इनकी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल आइडोफॉर्म लिख दीजिए, साथ में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत सारी जगह अप्लाई होगा, बट कंपाउंड वही देंगे जिसमें CH3CHOH ग्रुप होगा. जैसे मैं ये ले रहा हूँ सेकेंडरी अल्कोहल की बार, CH3CHOH ग्रुप इसमें भी है. आप कह सकते हो 2 वोल्स देंगे. 2 पे ये आपका, जैसे मैं बोलूँ उसको प्रोपेन 2 वोल है, तो जितने में 2 वोल्स आते हैं वो सब देते हैं कंपाउंड. I2 और NaOH के साथ हीट करेंगे, आइडोफॉर्म बनेगा, साथ में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे ये आपका था, छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये हमारा तो कन्वर्ट हो गया आइडोफॉर्म में, और ये वाला था CH3COONA में. तो 2 कार्बन बचे थे, 2 कार्बन का सोडियम सोल्ट बनेगा यहाँ पर. इसी तरह से मैं आपको समझाऊं, देखो CH3OH ग्रुप है, यहाँ पर CH3CHOH वाली कंडीशन नहीं आती है. इस तरह के अल्कोहल को हम यूज करते हैं तो ये टेस्ट नहीं देगा. तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स होंगे, आप पढ़िएगा. कोई प्रॉब्लम आए तो आप बुक कंसल्ट कीजिए. अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को आपको मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन नहीं अब तक प्रेस किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें. ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.